see, rules of running contract. So first of all, what do you mean by running contract? Running contract means the चल contract रहा which, होगा, हाँ, which is ongoing now. ongoing, but it should be for more than 1 year. Ongoing Yes. contract means it should be for more than 1 year. If it is going to be for more than 1 year, then it is known as running contract. Suppose, say for an example, a contract that has been started, suppose in the year of January 2003. Suppose January 2003, and now the details are given about January 2003, also for the January 2004, and also for January 2005. So in running contract, we will learn how to start the contract and how to complete the contract. I mean, how to start the records of the transactions of the beginning year and recording the transactions of the ending year. Now, suppose it is going to start from 2003. Okay, so what we need to do in starting first 2003 year, we will calculate notional profit as usual with the common method. Okay, with our same method. And when we will go in 2004, same contract is going on. Still, it is not yet completed. So what we have to do, we have to still record the transactions of the same contract for the next year, that is 2004. Am I correct? Yes, after 2003, 2004 comes in the picture. So now what we have to do for 2004, also we need to record the transactions of the same project that we have taken, the contract that we have taken. Okay, now this much is clear. Now what we will do, while we will go to the next year 2004, because it is same contract. So first four things which are written here, first four things, first 4 points which are highlighted here with red color are very important, because others are also very important, but these four things has to be carried down or brought down. Sorry, these four things will have to be brought down to the next year, because the same contract is being carried on. No, are you getting my example? Now suppose you have material at site, closing material. What do you mean by closing material? Closing means same contract if the year ends. If the year ends, suppose the year will end on 31st December, because I took the example of January 2003. So suppose the year ends on December 2003. Suppose. So on 31st December 2003, the material is there with us. The plant is there with us. That is known as plant at site, material at site. So which is closing material, which is nothing but closing material. So that particular closing material and plant closing, what we will do with that, because it is closing of that year, will become opening We for should. the next year. Am I right? Ye- yes, ma'am. Because it is same contract. If it is going to be another contract, then the matter is different. And we have done the sums of different contracts altogether. You remember A and B contract, AB and PQ Yes. contract. So we Yes. have Yes, done ma'am. sums related to different contracts in 1 year. In 1 year, there were different contracts that were taken in hand by the contractor. But now this is not the case. The case is only one contract is running for so many years. Running means going on for so many years. Suppose one contract is going on for 5 years. So it starts from 2003, goes up till 2008. Are you getting my example? Yes, ma'am. So because the same contract is there, therefore the kharcha, the expenses will be same to the next year. They will carry down, sorry, they will be brought down to the next year. Okay. Now, just as I told you, plant at site, material at site, whichever point will be there, whichever material or plant will be there, will be taken to the another year. The closing will be shown as the opening balance. Okay.
Now this much is very, very clear to you all, I hope. Yes Yes, or ma'am. no? Yes. Yes. Okay. Now there are some rules that we need to discuss before we start the practical questions of contract costing, running मैम contract. आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम. अभी आ रहा है? Just a minute. Wait. Just a minute. हाँ जी, अभी आ रहा है आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो मैं क्या बता रही थी आपको? I was saying that before starting practical questions, we will begin with the rules of the running contract. Because until and unless you understand these rules, you will not be able to solve practical questions of running contract, especially running contract. Because these are the rules only and only for running contract. Have I did I teach you these running contract rules before when we were starting with the simple questions? Did I No, teach ma'am. you anything like this? No. No. Because if it is going to be very simple problem, if it is not running contract, then simply you just have to go with those methods that I taught you in the earlier lectures. Very simple. But now what you have to do, your first thing is to understand all the 8 rules that are there for the running contract. Now let us take the first one. Can you see the first one? Or Yes, ma'am. yeah. So first one is running contract rules. The contract which goes on for more than 1 year is known as running contract. By now you have understood what is running contract. Now let us quickly begin with the 8 rules that are given here. Only 8 rules and very, very simple. It is not tough. It is just a part where you will feel that the sum is very lengthy. Because if sum is given for 3 years, contract is running for 3 years, then you have to make the columns of 3 years differently, separately. And if it is going to be for 5 years, then you have to make columns and everything statements for 5 years. Altogether separately, not in one column, not in one table, not in one statement. So you need to make it in the different pages. Are you following me? Yes, Ma'am, ma'am. can you repeat it again? अलग अलग पेज पे बनाना है बच्चा. 3 पेजेस 3 इयर्स का होगा तो 3 इयर्स के लिए अलग अलग पेजेस पे 3 स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे. तो थोड़ा लेंदी होता है, नथिंग एल्स. मैम बहुत लेंदी लग रहा है. नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी होता है. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन नाउ. लेट्स नॉट थिंक टू मच नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ओनली लेंदी. दैट्स इनफ. जब आप सम करेंगे तो आपको लगेगा इट इज वेरी इजी. कुछ भी तो नहीं है इसमें. अभी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किया, सिंपल प्रॉब्लम्स किए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, तो आपको कुछ टफ लगा उसमें? नहीं. कुछ टफ लगा? आप बताइए. नो मैम. नहीं, सिर्फ पोस्टिंग ही तो करनी है. डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को लेकर आना है, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग मटेरियल एंड एवरीथिंग हैज टू बी ब्रॉट डाउन, एंड देन उसके बाद नोशनल प्रॉफिट निकालना है, बैलेंसिंग फिगर. नोशनल प्रॉफिट निकाल के 2 ही तो वर्किंग नोट्स होते हैं, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड 2/3 1/3 वाली फॉर्मूला. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन नाउ. वर्क सर्टिफाइड, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल. वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, जब हम लोग सपोज अभी 2003 2004 2005 के रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं सपोज, so work certified and uncertified of the last year will be transferred to the next year of the debit side of the contract account. Now आप एग्जांपल ले लो ना, ये सम का. एक मिनट रुको, मैं आपको ओपन करके बताती हूँ वर्कशीट. ये रही. अभी देखो, ये होता है ना, ये इसकी बात कर रहा है फर्स्ट रूल में ना, वो इसकी बात कर रहे हैं. What he is talking about, he is talking about work certified and uncertified. Now what is there? Work certified and uncertified is there on the credit side of the first year's contract account, yes or no? Yes. Now it will be brought down. So हमेशा याद रखो, everything which is brought down on the next side, on the opposite side of the one which is there on the earlier year.
in the earlier year. So in the earlier year, it was on the credit side. Now in the next year, when you will go to the next year, suppose now this is 31st March 2014. Now we have work certified and uncertified of 2014. Now it will, when it will go to 1st April 2014. 1st April means starts with the next year. Yes or no? Does it start with the next year, 1st April Yes, ma'am. 2014? तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करना है. हमेशा याद रखो, ब्रॉड डाउन ऑपोजिट साइड में होते हैं. नाउ व्हिच इज द ओरिजिनल साइड? क्रेडिट साइड. ब्रॉड डाउन हैज टू बी Yes. डन ऑन द Debit side. So that's what is written. See, you just told me it has to be brought down to the debit side. So that's what is written in the first rule. Check it, read it out. After reading, you will be able to understand it more clearly. Please read it out. What is given? Somebody will read for me. Yes, ma'am. Yeah, read out. Work satisfy and unsatisfy of a last year will be transferred to the next year to debit side of the contract account. Very good, very good. So it is going to be debit side of the contract account for the next year. So that's what I told you. Now, material at site, plant at site, stores at site, tools at site, anything which is at site at the closing date means closing material, closing plant, whatever is there. Now, because it is there at the site, because it is there at the site with us, so it is closing material. Now, common sense, because it is there with us, we will use it in the next year. No, why we will throw it? समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. जो भी Yes, हमारे पास ma'am. सीमेंट, कांच वगैरह, जो भी हमारे पास स्टील, जो भी कुछ चीजें पड़ी हैं, तो हम अपने साइट पे जो हमारे पास पड़ा है पर्टिकुलर ईयर में, अगर ईयर एंड हो जाता है तो उसे कहते हैं क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग टूल्स, क्लोजिंग प्लांट. तो हम उठा के फेंक थोड़ी देंगे, हम तो उसे नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे. तो जब हम उसे नेक्स्ट ईयर यूज करते हैं ना, ध्यान से सुनो, जब हम उसे नेक्स्ट ईयर यूज करते हैं तो उसे डेबिट साइड लेकर आते हैं. व्हाई इट हैज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड? अगेन आई विल रिपीट सेम पॉइंट हियर एज पर दिस एग्जांपल. मटेरियल ऑन हैंड. मटेरियल ऑन हैंड का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग मटेरियल. मटेरियल एट साइट. Similarly, if you have plant at site, if you have stores at site, if you have tools at site, the one which I have highlighted is material at site. Material at site means closing material. So because it is 31st March 2004, it will be closing for this year. But if I go to 1st April 2014, so what will I do? I will brought down this. I will bring. Please try to understand the meaning of brought down. Brought down means I'm bringing with me the material which I had in the last year. In the next year, I'm bringing it with me. Is it very clear? I'm bringing along with me, no? So it has to be brought down. Brought means I'm bringing it. So now what you will do? Because it was closing material, therefore it was on the credit side. Now it will become opening material. Yes or no? Yes. On the It 1st will be April debited. 2014, it will become opening material. So it will be shown on the debit side. Debit side, to material brought down. To material brought down. I don't think so. If you haven't, like, you have any doubt. See, suppose you No, have ma'am, any we doubt, don't please have. on the spot clear कीजिए, क्योंकि उसके बाद वाली पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगी फिर. अगर ये सिंपल समझा पॉइंट्स मैम. नहीं समझ आ रही हैं तो. Ma'am, समझे them clearly. हाँ, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए मैं फर्स्ट सम का एग्जाम्पल खोल के आपको बता रही हूँ हर एक चीज. उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज क्लियर करो. डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ओके इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एट वंस. इट्स रियली ओके. आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. होता है कभी कभी कोई सिंपल पॉइंट भी हमको नहीं समझ में आती है, टफ पॉइंट भी एक बार में समझ में आ जाती है. सो प्लीज आस्क मी ऑन द स्पॉट. सिर्फ आप हैंड रेस करके बोलो मैम मुझे डाउट है. ओके नेक्स्ट चलो थर्ड देखो.
WIP reserve will be transferred to the contract account of the next year to the credit side. Now, what I always say, notional profit is divided into two parts. One is taken to the pocket and other one is reserved for tomorrow. For tomorrow means now this is closing. क्लोजिंग के बाद क्या आता है? नेक्स्ट डे के 31 मार्च इज द क्लोजिंग. तो नेक्स्ट डे क्या आता है? 1 अप्रैल आता है. हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो जो मैंने रिजर्व करके रखा है 31 मार्च को, जो क्लोजिंग है 31 मार्च का, वो 1 अप्रैल का रिजर्व में क्या हो जाएगा? ओपनिंग रिजर्व हो जाएंगी. येस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये रिजर्व क्रिएट करने का मतलब ही क्या था? कोई बताएगा? 2 WIP रिजर्व का WIP वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मैंने पैसा रिजर्व करके रखा है. सब करके रखा है, 68,400. ये Yes. कल के लिए मैंने रिजर्व करके रखा है ना. नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है ये. हाँ. बाकी का तो मैंने अपने पॉकेट में डाल दिया. पॉकेट वाला तो गया काम से. अब वो मेरी मर्जी, मेरी कंपनी का पैसा है, वो मेरा कॉन्ट्रैक्टर का, वो तो मेरे पॉकेट में गया. म्यूट एवरीबडी प्लीज. शिवानी म्यूट. चलो, ये तो मेरे पॉकेट में चला गया 1,02,600. बट जो 68,400 है वो तो कंपनी की कल के खर्चों के लिए मैंने रखा है. कल भी तो खर्चे होंगे. मटेरियल खत्म हो जाएगा तो मटेरियल मंगाना पड़ेगा. लेबर को वेजेस पे करनी पड़ेंगी. ओवरहेड्स दूसरा खर्चा. हाँ या नहीं? Yes, ma'am. इलेक्ट्रिसिटी का Yes, ma'am. खर्चा. कंस्ट्रक्शन साइट पे भी तो हम बल्ब्स लगाकर काम करते हैं ना. रोशनी चली जाए तो हम थोड़ा बल्ब से काम करेंगे, थोड़ा कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत ही खर्चा होता है. वैसे तो सनलाइट में काम होता है. दिन के टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है. बट स्टिल कोई ऐसी एरिया में काम कर रहे हो जहाँ अंदर वाली एरिया है, जहाँ सनलाइट इतनी पहुंच नहीं रही है, तो आपको लाइट्स की जरूरत पड़ेगी. जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा करना पड़ेगा. सो ये भी तो खर्चा है आपका. तो ये 68,400 जो मैंने रिजर्व करके रखा था, उसको ब्रॉट डाउन करना है. अब ब्रॉट डाउन तो वो ऑपोजिट साइड में होता है. सो नाउ दिस इज डन. दिस इज शोन ऑन द डेबिट साइड. सो बताओ, WIP रिजर्व अगर डेबिट साइड दिखा है तो नेक्स्ट ईयर की कौन सी साइड में लेकर आऊं? Credit side, ma'am. Credit side, तो ma'am. आप वही तो मैंने अभी पॉइंट पढ़ो, फिर से पढ़ो. WIP reserves will be transferred to the contract account of the next year to the credit side. अभी जो आपने मुझे आंसर दिया बस वही तो, उसको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है. और क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. चार जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स है ना, फर्स्ट 4 पॉइंट्स वो सारे के सारे ब्रॉट डाउन वाले हैं. ब्रॉट डाउन. तो ब्रॉट डाउन होता क्या है? सिर्फ ऑपोजिट साइड में लेकर आने हैं. Yes, ma'am. और लिखना है टू मटेरियल ब्रॉट डाउन. हाँ बराबर. टू मटेरियल ब्रॉट डाउन बाय WIP ब्रॉट डाउन, टू वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड ब्रॉट डाउन. चलो अभी नेक्स्ट. भूल भी नहीं सकते हैं इसको तो मैम. रूल में फर्स्ट रूल में क्या बताया था? डेबिट साइड बताया था कि क्रेडिट साइड बताया? इसको भूलने का कोई चांस ही नहीं है ना. क्यों भूलने का चांस नहीं है? क्योंकि लॉजिक है, जब हम जिस साइड लिखते हैं उसके ब्रॉट डाउन करना है तो नेक्स्ट साइड करते हैं. अब हमने WIP रिजर्व कौन सी साइड लिखा है हमेशा से? Debit side, Debit ma'am. side. अब कॉमन सेंस है ना, मैं उसको कहाँ लिखूंगी, कहाँ ब्रॉट डाउन करूंगी? Credit side. क्रेडिट साइड. तो ये भूलने का कोई चांस ही नहीं है रूल को. ये रूल को भूलने का कोई चांस ही नहीं. मैम कौन सी साइड बताया था? डेबिट साइड बताया था कि क्रेडिट साइड बताया था? भूल गए हम. ये तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है. ये तो लॉजिक है. ठीक है. चलो, मतलब याद क्या रखना है? पहला रूल था वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के बारे में. वो ही भूल गए. वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को लेके आना ही भूल गए, उधर प्रॉब्लम अराइज होगी. ठीक है. चलो रूल नंबर 4. अब जो फर्स्ट के 3 थे ना वो ब्रॉट डाउन के थे. तो मैम फोर्थ क्या है? वो भी तो ब्रॉट डाउन ही आपने बोला. हाँ ब्रॉट डाउन ही है. लेकिन जो फर्स्ट 3 थे ना वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में. कौन से अकाउंट के बारे में? Contract account. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. मतलब ऊपर वाला बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं. ठीक है. अब जो फोर्थ है ना, फोर्थ रूल, वो बोलता है ब्रॉट डाउन करो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस आया था ना, क्लोजिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद है सबको? Yes, ma'am. उसको लेकर आओ. अभी देखो मेरी बात सुनो. आपको कॉन्ट्रैक्टर ने 50 लाख रुपए दे दिए. सॉरी, कॉन्ट्रैक्टी ने
आपको कॉन्ट्रैक्टी ने 50 लाख रुपए अभी तक दे दिए, तो अब 50 लाख रुपए तो कैश है। कौन किसकी कैश है? मेरी पर्सनल कैश है, मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की कैश है वो, नहीं, कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का जो कुछ अमाउंट है वो है वो, तो वो तो मुझे बिजनेस में वापस लेकर आना है ना। क्लोजिंग कैश को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाओगे आप? नहीं दिखाओगे? यस मैम, जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर टू सेकंड में किया था, सब में ब्रॉट अभी डाउन देखो, करके। मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ फर्स्ट सम का। ये देखो, फर्स्ट ईयर में मुझे कैश मिली थी 10,53,000, मुझे कस्टमर ने 10,53,000 दिया, तो एंट्री किया बाय सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में दिखा दिया बाय बैंक अकाउंट। अब मैंने जब क्लोज किया तो हमने यहाँ पे लिखा 10,53,000 क्लोजिंग कास्टिंग फिगर, 10,53,000 कास्टिंग फिगर। अब 10 लाख में से जीरो जीरो माइनस किया तो 10,53,000 ही आएगा ना। 10,53 में से माइनस दिया, जीरो किया क्योंकि डेबिट साइड कुछ था ही नहीं, यस, था ही नहीं, सेम तो मैंने अमाउंट है। 10,53,000 क्या कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिखाया। क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं हम? टू बैलेंस कैरेट। अब से जो आप बाय बैलेंस कैरेट ब्रॉट डाउन लिखते थे ना, अब यही सेम ब्रॉट डाउन आप नेक्स्ट ईयर में लिखोगे, यहाँ पे नहीं लिखोगे। किया तो है ब्रॉट डाउन, ये देखो कैरेट डाउन को हमने नेक्स्ट साइड में ब्रॉट डाउन किया ना, ये नेक्स्ट साइड प्लस नेक्स्ट ईयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ यस नेक्स्ट मैम, साइड नहीं होता है, ये नेक्स्ट साइड ऑफ द नेक्स्ट ईयर होता है। इक्वल टू नेक्स्ट ईयर। हाँ, मतलब अगर ये 2013 का है ना, तो ये 2014 का होता है। यस मैम, ठीक है, अभी क्लियर समझा। हुआ? बस Yes, अभी हम यहाँ भी नहीं लिखते, नेक्स्ट पेज पे जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया होगा ना, उधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और पहली पहली लाइन पे लिखेंगे यहाँ पर। हमेशा ओके याद ओके, रखो, समझा। जो क्लोजिंग का ओपनिंग लेकर आता है ना, वो हमेशा पहली पहली लाइन पे होते हैं, हमेशा फर्स्ट लाइन पे होते हैं, कभी नीचे नीचे हाँ, नहीं दिखेगा। यहाँ पे नीचे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसी अकाउंट में किया है ना, इसी अकाउंट में किया ना। अभी मैं एक और अकाउंट बनाऊंगी कॉन्ट्रैक्टी का दूसरे पेज पर, जो सिर्फ 2014 का होगा, जो सिर्फ 2015 का होगा, और जो सिर्फ 2016 का होगा। अभी क्लियर हुआ? yes, यस ma'am. मैम। फर्स्ट 4 रूल्स क्लियर हो गए। अब आगे आ जाओ फिफ्थ रूल पे। ठीक है, फिफ्थ रूल क्या बोलता है? थोड़ा ध्यान से, अब जो फर्स्ट 4 रूल्स थे वो तो बहुत सिंपल थे, अब थोड़ा ध्यान से। while recording or writing WIP and work certified, WIP में नहीं, दो पार्ट्स होते हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। WIP के दो पार्ट्स होते हैं ना, वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। मैं यस WIP मैम। रिजर्व्स की बात नहीं कर रही हूँ बच्चा, हाँ हाँ, प्लीज समझा। कंफ्यूज मत हो ना। जब मैं सिर्फ WIP बोलूँ, मतलब वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड आर द टू पार्ट्स ऑफ WIP। जब मैं बोलूँ WIP रिजर्व्स, तो वो तो नोशनल प्रॉफिट का फर्स्ट पार्ट होता है, रिजर्व्स एंड कॉस्टिंग P&L। अब आ जाओ, समझा मैं मैम। बात कर रही हूँ WIP की। जब हम WIP लिखते हैं तो उसमें जो वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड, मैं अनसर्टिफाइड की बात ही नहीं कर रही हूँ। आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट वर्क सर्टिफाइड विच इज पार्ट ऑफ WIP। अब जो मेरा वर्क सर्टिफाइड होगा, वाइल रिकॉर्डिंग और राइटिंग वर्क सर्टिफाइड, जब हम नहीं लेकर आते, फर्स्ट पॉइंट पढ़ी थी कि हमको डेबिट साइड उसको लेकर आना है, ठीक है, हाँ, वो तो ब्रॉट डाउन, वो तो सेम अमाउंट ब्रॉट डाउन करोगे। अभी देखो एग्जांपल, जब आप ब्रॉट डाउन करते हो ना, सेम अमाउंट से ब्रॉट डाउन करते हो। पहला रूल ब्रॉट डाउन का क्या होता है? नेक्स्ट साइड लेकर आते हो, ऑपोजिट साइड। दूसरा रूल होता है सेम अमाउंट, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड सेम अमाउंट आप ब्रॉट डाउन करोगे, मतलब डेबिट साइड लिखोगे टू WIP ब्रॉट डाउन, वर्क सर्टिफाइड 11,70,000 सेम, वर्क अनसर्टिफाइड 27,000 सेम। दो जो आप लास्ट ईयर से लेकर आओगे करंट ईयर में, वो तो सेम होगा ना बच्चा। इतना सबको क्लियर है? यस मैम। अब मैं ब्रॉट डाउन वाले की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्क सर्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर। अभी नेक्स्ट ईयर भी तो कुछ नया वर्क सर्टिफाइड होगा ना, नेक्स्ट ईयर भी तो आप काम कर रहे हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट ही आकर चेक करेगा, बोलेगा ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो जो अच्छा लगेगा उसको वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, येस और नो?
यस Yes or मैम, no? हाँ, यस तो जैसे फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड था, जिसको आपने ब्रॉट डाउन कर लिया उसको भूल जाओ, अभी भूल जाओ, फर्स्ट रूल भूल जाओ। अब आ जाओ फिफ्थ रूल पे। वो बोलता है सेकेंड ईयर में भी तो कुछ वर्क सर्टिफाइड करेगा ना कस्टमर, क्लाइंट, यस कॉन्ट्रैक्टी। मैम, उस वर्क सर्टिफाइड की बात कर रही हूँ मैं, जो नेक्स्ट ईयर का होगा। ओपनिंग की हाँ बात हाँ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। चलो पहले तो ये रूल समझ जाओ आप, ये ओपनिंग की बात नहीं हो रही है, ये नेक्स्ट ईयर का जो फ्रेश WIP का फ्रेश वर्क सर्टिफाइड होगा। अच्छा, तो उस वर्क सर्टिफाइड को आपको कैसे रिकॉर्ड करना है? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड करना है। क्यूमुलेटिव फिगर शुड बी कंसिडर्ड। किसकी? वर्क सर्टिफाइड की। कौन सा वर्क सर्टिफाइड? नेक्स्ट ईयर का फ्रेश वाला वर्क सर्टिफाइड। एग्जाम्पल मैम नहीं समझ में आया, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? वो हमने स्टैटिस्टिक्स में सीखा था, जब नंदिनी मैम ने सिखाया था। हमने SAPM में सीखा है अभी सेम 6 में, SAPM सब्जेक्ट, जिसमें आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फिगर्स बनाना सीखा है। यस और नो? यस और नो? क्यूमुलेटिव फिगर्स बनाना सीखा है कि नहीं? यस? मैम, याद नहीं आ रहा है मैम। याद नहीं आ रहा है? ओ माय गॉड, कैसे याद नहीं आ रहा है? हाँ अभी मैम, अभी हम लोगों ने नहीं किया स्टैंडर्ड डेविएशन के सम्स में क्यूमुलेटिव बनाना नहीं सीखा। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं सीखा है, पर क्यूमुलेटिव बनाना आता है कि नहीं आता है? हाँ, अच्छा, कैपिटल बजटिंग चैप्टर याद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? उसमें हम लोग क्यूमुलेटिव फिगर्स नहीं निकालते थे, क्यूमुलेटिव DCI। हाँ, मतलब पहला फिगर जो है समझो 11,70,000, मैं वर्क सर्टिफाइड की बात करती हूँ, 11,70,000। अब नेक्स्ट ईयर का फिगर है 10,70,000। याद आया? तो फर्स्ट ईयर हम सेम रखते थे 11,70,000, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में जब लिखते थे ना तो 11,70,000 प्लस 10,70,000 करके लिखते थे। याद आया? अभी याद नहीं आया? अच्छा चलो कोई नहीं, ये देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ले लो, समझो फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड है 10 lakhs। मैं सिंपल वाली फिगर्स ले रही हूँ, जैसे है ना इजी हो जाए थोड़ा ऐड करना, मतलब कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब आप सेकेंड ईयर में आओगे, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है यस मैम, सबको? हाँ मैम, सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड है ना 20 lakhs हो गया। जैसे जैसे आपका काम ज्यादा ज्यादा खत्म होता है तो ज्यादा ज्यादा वर्क सर्टिफाइड होता जाता है ना। अब थर्ड ईयर में आपका वर्क सर्टिफाइड था 10 lakhs। अच्छा, अब थर्ड ईयर में ना खत्म, थर्ड ईयर के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब आपको ना क्यूमुलेटिव फिगर्स निकालनी है, क्यूमुलेटिव। तो फर्स्ट ईयर में तो 10 lakhs ही होगा ना, कॉमन सेंस से। अब जब आप सेकेंड यस ईयर में मैम, आओगे ना तो पिछला 10 lakhs अभी में ऐड करोगे। अभी कितना है? अभी कितना है? 20 lakhs, 20 lakhs, तो उसके पहले कितना था? 10 lakhs, 10 तो lakhs, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल अब तक कितना सर्टिफाई हो गया अब तक। 30 lakhs, 30 वेरी गुड, lakhs. सो दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव, नथिंग एल्स। कितना सिंपल है। अब बताओ आपका समझा मैम। टोटल सेकेंड ईयर तक 30 लाख सर्टिफाई हो गया था, सर्टिफाई। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड ईयर में 10 लाख और हुआ, तो मतलब टोटल कितना हुआ? 40 40 lakhs, lakhs. मतलब पिछला 30 लाख प्लस अभी का 10 लाख, टोटल 40 लाख सर्टिफाई हो गया। और आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 30, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, रुको एक मिनट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होगी ना वो भी 40 lakhs होगी। वो भी 40 lakhs होगी। मतलब इसमें से क्या समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 lakhs जो है ना, लास्ट ईयर से मैच करना चाहिए वर्क सर्टिफाइड से, यस। तब जाके मैं मतलब क्यूमुलेटिव करती हूँ। एंड तक उतना पैसा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है वो एंड तक मिल हाँ, जाएगा ना अभी पूरा। देखो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 40 lakhs है, तो प्राइस के हिसाब से ही तो देखेंगे कितना काम सर्टिफाई हुआ। अभी देखो 40 lakhs में से
मैंने 20 लाख का काम किया फर्स्ट ईयर में, पर सर्टिफाई सिर्फ 10 लाख हुआ, तो मतलब 50% काम सर्टिफाई हुआ, यस और नो? तो मैं अमाउंट में ही तो उसको मेजर करूंगी ना, कितना काम सर्टिफाई हुआ कितना नहीं हुआ, ये तो हम अमाउंट में मेजर करेंगे ना। किसका अमाउंट लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पहला फर्स्ट ईयर में 10 लाख का काम सर्टिफाई हुआ, फिर धीरे धीरे जितना ज्यादा काम खत्म होगा तो वर्क सर्टिफाई भी बढ़ता जाएगा। 30 लाख का काम फिनिश हो गया, वर्क सर्टिफाई भी हो गया, और लास्ट ईयर में हमारा सारा का सारा काम सर्टिफाई हो गया, मतलब सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अब मुझे मिल जाएगा काट साट के, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी तो मुझे कुछ पैसे दिए होंगे, सेकेंड ईयर में भी दिए होंगे, थर्ड ईयर में जब आप मुझे दोगे ना तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का काट के दोगे, कोई वापस थोड़ी पूरा पैसा देता है। 2 करोड़ है तो 2 करोड़ ही 2 करोड़ देगा थर्ड ईयर में। 2 करोड़ में से आपने 1 करोड़ तो आपने फर्स्ट ईयर में पे किया था, 20 लाख आपने पे किया था सेकेंड ईयर में, तो 1 करोड़ 20 लाख आप पे कर चुके हो 2 करोड़ में से, तो और कितना पे करोगे? 80 lakhs. हाँ, तो बस वही तो पॉइंट है, यही तो लॉजिक है जो हम कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में यूज करेंगे जब सम्स में आएंगे। जो अभी आपने बोला ना 80 लाख, बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जब 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लास्ट ईयर से मैच होता है, लास्ट ईयर से मैच होता है, तो ना जो फिगर्स दी होती है ना वर्क सर्टिफाइड की, उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव फिगर्स। तभी तो मैं क्यूमुलेटिव बना रही हूँ ना, क्योंकि सब में क्यूमुलेटिव फिगर्स नहीं दी हुई है। नहीं समझा? फिर से बोलूं? देखो हाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्क सर्टिफाइड 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना 40 लाख, अगर वो लास्ट ईयर से मैच हो रहा है, किसके? वर्क सर्टिफाइड के। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर लास्ट थर्ड ईयर के वर्क सर्टिफाइड से मैच हो रहे हैं, तो मतलब जो फिगर्स दी हुई है ना, फिगर्स किसकी? वर्क सर्टिफाइड की, वो क्यूमुलेटिव फिगर्स है। ये सारी फिगर्स कौन सी? क्यूमुलेटिव। कैसे पता चला मैम क्यूमुलेटिव है? क्योंकि 10 लाख में 30 लाख, सॉरी 10 लाख में 20 लाख ऐड करके 30 लाख दिया है ना। नहीं समझा? 10 लाख में 20 लाख, जो सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड था वो ओरिजिनली कितना था? 20 लाख, पर उन्होंने 30 लाख दिया है, पर उन्होंने क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड 30 लाख दिए। उसका मतलब क्या हुआ? क्यूमुलेटिव मिला 10 हुआ लाख है कि पहले से क्यूमुलेटिव नहीं मिला मिला हुआ हुआ है? है. हाँ, तो मैं मिला यही हुआ तो है बता ना. रही हूँ, यही बता रही हूँ मैं। अब थर्ड ईयर की फिगर क्या मिली हुई है क्वेश्चन में? 40 लाख। किसकी? वर्क सर्टिफाइड की। एक्चुअली ओरिजिनली कितना है फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का? 10 10 10 lakhs. लाख पर दिया क्या हुआ है? 40 40 लाख। lakhs. मतलब 10 तो लाख को उन्होंने 30 लाख में ऐड करके दिया उन्होंने, Yes, हाँ ma'am. तो मतलब क्यूमुलेटिव फिगर्स अवेलेबल है। देखो इसका यस शॉर्टकट मेथड क्या होता है पता लगाने का कि क्यूमुलेटिव फिगर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। क्यूमुलेटिव फिगर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है पता लगाने का? कि लास्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मैच हो रहा है। लास्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर का वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मैच होता है ना जब, तो क्यूमुलेटिव फिगर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब रूल नंबर 5 तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। अब मैंने इतना भाषण क्यों दिया? क्योंकि रूल नंबर 5 विल बिकम इजी अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अमाउंट थर्ड ईयर के वर्क सर्टिफाइड से मैच होता है, तो रूल नंबर 5 बहुत इजी हो जाता है। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ। जब क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख ऐसे दिया हुआ है,